Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative video on the magnetic effects of electric current for Class X students. The video serves as a comprehensive revision tool, specifically designed for CBSE and other board exams, covering a wide range of topics within this subject. The video aims to provide students with a clear understanding of magnetic effects and their significance, with an emphasis on previous year's questions. It ensures that students are well prepared and confident for their upcoming board exams. This knowledge-based explanation article explores the intricacies of the magnetic effects of electric current. It delves into various concepts, including the right-hand thumb rule, magnetic field lines, and applications of electromagnetic induction, through easy-to-understand explanations and illustrative examples. The video aims to simplify complex ideas, making it easier for students to grasp key concepts. Ignited Minds Tutorials has always been dedicated to promoting academic excellence, and this video on magnetic effects of electric current is in line with their mission. By providing valuable resources and study material, they aim to ignite the minds of students, equipping them with the knowledge necessary to excel in their exams. So, if you are a Class X student seeking a comprehensive revision of magnetic effects of electric current, look no further. Visit Ignited Minds Tutorials' official website or YouTube channel to access this enlightening video and embark on your journey towards success. Okay, people, we will do some revision about magnetic effect of electric current. ठीक है, आपका effects of electric current और magnetic effect of electric current all has been covered in one chapter. ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए ये नया चैप्टर है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो कम से कम आप लोग पहले डील कर चुके हैं. ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा पहले हम जो आपका थियरी पार्ट है वो देख लेंगे और फिर दोनों भी बोर्ड से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं विल डिस्कस दैट. ठीक है, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आए हैं और स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों से इस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर पे वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. ठीक है, सब्सटेंसेज विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, इनको हम भाई साहब मैग्नेटिक सब्सटेंसेज बोलते हैं. आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, एंड स्टील. द सब्सटेंसेज विच आर नॉट अट्रैक्टेड, नॉन मैग्नेटिक हो गए. सराउंडिंग अ मैग्नेट, इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट बाय अनदर मैग्नेटिक एलिमेंट. दिस एलिमेंट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. अगर आपका किसी मैग्नेट के आजू बाजू किसी मैग्नेटिक मटेरियल ने इस मैग्नेटिज्म को फील किया तो इस पर्टिकुलर जगह को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. हर एक मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा ही होगा. मोनोपोल्स फॉर मैग्नेट्स विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, मोनोपोल्स की जो कंडीशन है वो नहीं हो सकती. ठीक है, कोई देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे होता है प्लस और माइनस चार्ज से, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है. ठीक है, लेकिन आपका मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट सपोज टू एग्जिस्ट. मैग्नेटिक मोनोपोल आपका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है या सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ओके. When a magnet is placed in a magnetic field, it aligns along the field lines. Right hand thumb rule: hold the current carrying wire in your hand. अगर किसी current carrying wire को आपने hand में पकड़ा है और ये जो encircling of fingers हैं, these will become what? These are basically the magnetic field. ठीक है, ये आपका magnetic field हो जाएगा. So hold the current carrying wire in your hand such that the thumb indicates the direction of the current. Then the folded fingers will indicate the presence of magnetic field lines. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ द वायर. तो आपके लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा एंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द वायर एंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किन किन चीज़ों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द वायर पे. मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ पे प्रोपोर्शनल है, करंट ऑफ द वायर पे. और मैग्नेटिक फील्ड बाय साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पे. जैसे जैसे आपका वायर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू रिड्यूस एज एंड व्हेन योर डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर इज गोइंग टू इंक्रीज. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू अ करंट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द करंट एंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, तो आपका देखो आपने पढ़ा ये सोलेनॉइड होता है ऐसा. ठीक है, एक कोई सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें भाई साहब ऐसे करंट जा रहा है, तो इसका भाई साहब यहाँ पे डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो हो रहा है.
ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स. So it will be depend, the more the number of turns, the more strong will be the magnetic field, and the more is the current, the more stronger will be the current. ठीक है, clear है. So it will be okay. A coil of large number of turns closely wound, इसको अपन solenoid बोलते हैं. This is basically solenoid. The end of the solenoid having clockwise current. तो आपने देखा कि भाई साहब अगर solenoid को, ये समझ लो कोई solenoid है, ये भाई साहब आपका solenoid है, ठीक है. इसको आप भाई साहब इस तरफ से देखें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब करंट तो ऐसे ही पास होगा, है ना. अगर मैं इसको इधर से देखूं, ऐसे इस साइड से मैं अगर इसको देखूं, ठीक है, तो मुझे लूप कैसे दिखेगा, देखो करंट ऐसे दिखेगा ना भाई साहब, मतलब करंट ऐसे जा रहा है भाई साहब, है ना. हाउ इज द करंट गोइंग, अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये लूप है, देखो तो करंट कैसे जा रहा है भाई साहब, ऐसे, है ना, ये ऐसे जा रहा है. और जब ऐसे जाता है तो अपन क्या करते हैं भाई साहब, इसको एक बहुत फालतू सा क्या बना देंगे हम, एस. ठीक है, ये कौन से आर्टिस्ट का एस है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा भाई साहब आपका एस. ठीक है, ये ऐसा, मतलब करंट कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना करंट. तो इधर ऐसे बनाया और इधर ऐसे बनाया, बीच में डंडी खींच दिया, एस बन गया. ठीक है, ये हो गया आपका साउथ पोल. ठीक है, क्लियर है. इधर से देखो भाई साहब करंट को इधर से, तो इधर से अगर आप देखोगे तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. ठीक है, ये वाले को देखो, अगर ये वाले को, तो ये ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, लूप आपको क्या दिखेगा, करंट विल बी फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज. तो आपका भाई साहब ऐसे दिखेगा आपको करंट विल बी लाइक दिस. तो ऐसे बनाओ इधर का एक और ऐसे बनाओ इधर का एक, बीच में एक डंडी खींच दो, बन गया आपका क्या, नॉर्थ पोल. ठीक है, सो एक आपका साउथ पोल बन जाएगा और एक आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा. डिपेंड करता है आप किस तरफ से देख रहे हैं. ठीक है, सो अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो आपका भाई साहब ये बन गया साउथ पोल, और इस तरफ से देख रहे हैं तो आपका बन जाएगा ये नॉर्थ पोल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. तो सोलेनॉइड का कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा. सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिज्म है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी भाई साहब, डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं. लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ करंट कितना है, हाउ मच इज द इंटेंसिटी ऑफ करंट, मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है, आर वी क्लियर. ओके ओके ओके. Permanent magnets are made up of carbon, steel, chromium steel, tungsten steel and some alloys like alnico and nippermag. Alnico is an alloy of aluminium, nickel and cobalt. तो aluminium, nickel and cobalt का भाई साहब रहता है alnico. ठीक है, सो ये परमानेंट मैग्नेट्स है. परमानेंट मैग्नेट्स मतलब जिनकी मैग्नेटिज्म नहीं जाएगी. ठीक है, दे आर बेसिकली नोन एज परमानेंट मैग्नेट्स. ओके ओके ओके. When a material is placed inside a coil carrying current, it will get magnetized. A bunch of nails or an iron rod placed on the axis of the coil can be magnetized by the current allowed to pass through the coil. Such magnets are called as electromagnets. जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के पास होने तक मैग्नेटिज्म डिस्प्ले करती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. दीज आर नॉट परमानेंट मैग्नेट्स. ठीक है, दे विल बिहेव एज मैग्नेट्स ओनली टिल द टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो कॉलिंग बेल है वो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का. आपने जैसे ही बेल दबाया तो वहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट में ऐसे सोलेनॉइड रैप्टअप है, उसमें से भाई साहब करंट जाएगा और वो एक मैग्नेट की तरह बन जाएगा. इट्स नॉट अ हॉर्स शू मैग्नेट, इट एक्चुअली बिकम्स अ हॉर्स शू मैग्नेट. और वो क्या करेगा, इसको खींचेगा, जैसे इसको खींचेगा तो वो सर्किट कंप्लीट होगा और उसमें से एक म्यूजिक लगेगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी डिस्प्ले करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. Ampere suggested that when a current I passes through a conductor of length in a perpendicular, then the force experienced by this is given. ये तो आपके कोर्स में नहीं है, IBL sin थीटा होता है, ये आप 11th 12th में पढ़ेंगे भाई साहब. ठीक है, ओके. Fleming's left hand rule, stretch the first 3 fingers of the left hand mutually perpendicular to each other. तो ये आपका Fleming's left hand rule है. ठीक है, such that the forefinger points in the direction of magnetic field. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल. This is the forefinger which is pointing from the north to the south pole. ठीक है, the middle finger points in the direction of current. This will be the direction of current. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. मतलब आपका कोई बैटरी है, अगर बैटरी भाई साहब आपका ऐसा होता है, ये बैटरी है तो यहाँ से ऐसे इधर जाएगा, मतलब इधर से इधर आएगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. द थंब विल इंडिकेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर. तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर, ठीक है, और कंडक्टर फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, वाई विल द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स, बोला जावा जल्दी जल्दी बोला, फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, कोई उसको धक्का नहीं दे रहा है लेकिन वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, वाई विल द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स.
कोई भी कंडक्टर जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा? अरे भाई साहब सिंपल सा है, कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और आपने उसको रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्लैश होगा या तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। दो ही चीज़ हो सकता है ना, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के फील्ड में अगर आता है तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। दोनों ही केसेस में क्या ये मैग्नेट एक फोर्स फील करेगा, ईदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। In the same way, when you are placing a conductor in a magnetic field, there is already a magnetic field, and the conductor, due to the passage of current, will create a magnetic field around it. These two magnetic fields will either support each other in the case of attraction, or repel each other in the case of repulsion. In both the cases, is it going to experience a force? That is how it experiences force. ठीक है, okay. So इसी force का direction हम देते हैं। ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन, ये हो गया करंट और ये हो गया फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। दीज टू फोर्सेज ऑन द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। फैराडे का लॉ क्या बोलता है भाई साहब आपका? द रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा भाई साहब? E अपॉन R इंटू टी, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, फैराडे का लॉ बोलता है I करंट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इनटू टाइम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। अभी ये फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या बोलता है आपका? अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव करते हैं या किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव करते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस अ थैंक यू। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या बोलता है आपका भाई साहब? अगर आप किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं बाय अ फोर्स, देन इट विल सी अ करंट पासिंग थ्रू इट, तो इससे करंट जनरेट होगा उस वायर में। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक वायर को आप ऊपर नीचे साइडवेज कैसे भी मूव कर रहे हैं एक फोर्स से, तो उसमें देखो एक्चुअली में अगर आप देखने जाओगे ना तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही काफ़ी है। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मतलब वही सेम चीज़ है, द सेम थिंग्स आर देयर। यहाँ पे आप फोर्स को ले लेते हो तो करंट भाई साहब हो जाएगा, सो इट विल बी बेसिकली फोर्स, एक हो जाएगा भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा हो जाएगा आपका करंट। तो करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, एक्चुअली यही काफ़ी है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ही अप्लाई करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो आपका करंट जनरेट होता है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। यू डोंट एक्चुअली नीड राइट हैंड रूल। ठीक है, सो लोग बोलते हैं मतलब एक में आप फोर्स को डिटरमिन कर रहे हैं और एक में आप करंट के डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लेफ्ट और राइट हैंड रूल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में दोनों एक ही है। लेफ्ट हैंड रूल इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो राइट हैंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू जैसे द फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वही है सेम, देखो ये वही मैग्नेटिक फील्ड है। थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, सो दिस विल पॉइंट द करंट। सेम चीज ही है, इट इज द सेम। ठीक है, generator works on the principle of electromagnetic induction. It converts the mechanical energy available into electrical energy. तो आपके घर में जब लाइट चली जाती है, आपके बिल्डिंग में जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर को ऑन किया जाता है। ये जनरेटर अभी क्या है, ये जनरेटर एक गाड़ी की तरह मूव करता है। जैसे गाड़ी में जो पेट्रोल है उससे भाई साहब पहिया चल रहा है, मोटर चल रहा है ना, और इसी से भाई साहब घूम रहा है। तो इसी के मतलब आपके जनरेटर में भी ऐसा एक मोटर फिट है, वो तेल को कंज्यूम करेगा, मतलब जो भी डीजल आपने भरा हुआ है वो तेल को कंज्यूम करेगा और वो घूमेगा। वो घूमेगा किस में? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं जिनके बीच में वो घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और मतलब आपके लिफ्ट वगैरह या जो मतलब लॉबी की लाइट्स वगैरह हैं वो जल सकती हैं। ठीक है, फिर जनरेटर में जो आपके बिल्डिंग के सोसाइटीज़ में होता है। ठीक है, ओके, सो दैट इज़ व्हाट एन AC जनरेटर इज़। AC जनरेटर प्रोड्यूसेस पोटेंशियल विच रिवर्सेस। तो AC करंट क्या होता है भाई साहब आपका? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब आपका ये समझ लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कंटिन्यूसली चेंज होने वाला करंट। ठीक है, ओके ओके ओके। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या है भाई साहब आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एक आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक ऐसा मैग्नेट जो जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें तब तक उसमें मैग्नेटिज्म रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड इज एन एग्जाम्पल, ऐसे गोल 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 भाई साहब आपका सोलेनॉइड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज में राइट हैंड थंब रूल लगता है भाई साहब। यहाँ पे आपका
मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये सारे आपके मैग्नेट। सेफ्टी मेजर्स, फ्यूज एंड अर्थ, ठीक है। सेफ्टी मेजर है आपका फ्यूज वायर और अर्थिंग, दो चीज़ें हैं जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करा रहे हैं। ये जो फ्यूज वायर होता है, किसी ने भाई साहब उसको खोला है, देखा है क्या है वो, ठीक है। ये जो फ्यूज वायर लाल कलर का, ये तो जल्दी नहीं रहा भाई साहब, ये तो खराब ही हो गया है। ओके, तो फ्यूज वायर कुछ ऐसा होता है, देखो दिस इज हाउ द फ्यूज वायर इज। इसके अंदर आपको दिखता है एक छोटा सा वायर जा रहा है और इसी में से आपके घर में पूरा करंट एंटर होता है, ठीक है। इस टिन्नू से वायर से आपके घर में पूरा करंट एंटर होता है। मतलब एंट्री पॉइंट एकदम छोटी सी होती है, चाहे जितना भी आपने एसी चला के रखा हो, चाहे कुछ भी चला के रखा हो, तो आपके घर में जो एंट्री पॉइंट है इस थिन वायर से ही है। क्योंकि ये वायर थिन है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। क्योंकि ये थिन वायर है तो इसका एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा। अभी इस रेजिस्टेंस को हमने, मतलब जो हमारा नॉर्मल करंट जब तक आता रहेगा तब तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अचानक भयानक में अगर करंट का फ्लो बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट को ब्लॉक करेगा और इससे क्या जनरेट होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगा। इतना हीट जनरेट हो जाएगा कि जो पतला सा तार है ये पिघल जाएगा, क्योंकि कॉपर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा सा हीट जनरेट हो जाएगा और वो पिघल जाएगा और सर्किट जो है तो ऑफ हो जाएगी। ये होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही करंट अगर आपके अंदर करके अंदर आ जाता है तो वो सारे गैजेट्स को जला देगा, ठीक है। अचानक भयानक में अगर करंट का फ्लो बढ़ जाता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, हम बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया है। फ्यूज़ का उड़ना ज़रूरी है। आज की तारीख में तो भाई साहब आपके क्या हो गए, व्हाट आर दिस, हाँ क्या बोलते हैं उसको, नहीं स्विच अपने आप डिप होता है, वो अपने आप वो डिप हो जाता है, ठीक है। सो हाँ MCBs हो गए हैं, ठीक है। ये आज की तारीख में अपने आप वो कट जाता है, मतलब वोल्टेज का कुछ भी फ्लक्चुएशन हो गया या करंट का कुछ भी फ्लक्चुएशन हो गया वो अपने आप कट जाता है। पहले के ज़माने में भाई साहब ये फ्यूज़ उड़ता था, अभी तो ये छोटे वाले फ्यूज़ होते हैं। हमारे ज़माने में भाई साहब बड़े बड़े फ्यूज़ होते थे ऐसे, इसको निकालना पड़ता था, इसको निकाल कर फिट करके फिर हम उसको लगाते थे, ठीक है। ये अभी भी आपके बिल्डिंग के कनेक्शन में वो मिलेगा आपको। बिल्डिंग के कनेक्शन में नीचे जाएंगे अगर आप, तो आपको ऐसे सफ़ेद कलर का एक बड़ा सा फ्यूज़ मिलेगा जिसको खोल के हम ठीक करते हैं, ठीक है। ओके, सो सेफ्टी मेजर ये हो गया फ्यूज वायर, और दूसरा है भाई साहब आपकी अर्थिंग। अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आपका, देखो अर्थिंग क्यों ज़रूरी होती है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, ठीक है। कोई भी हाई जो वोल्टेज कंजम्पशन वाला यूनिट होता है, एसी हो गया, गीज़र हो गया, ये इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और बहुत लाजमी है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाए तो अगर एक जगह पे ये इकट्ठा हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो आपका देखो ये ऐसे यूनिट्स में आपके 3 पॉइंट प्लग होते हैं, ऐसे प्लग्स होते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है ये इस क्राउड को कहाँ भेजेगा, अर्थ में भेज देगा, क्योंकि ये कनेक्टेड होगा आपके बिल्डिंग की अर्थिंग से, ठीक है। ये बिल्डिंग की अर्थिंग से कनेक्ट होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों दे विल बेसिकली फ्लो फ्रॉम हियर इनटू द अर्थ एंड अवॉइड अ शॉर्ट सर्किट और एक्सीडेंट, ठीक है। क्लियर है, ओके। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर हो गया भाई साहब आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, तमाम चीज़ें हो गई ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ये पोल्स इसके कंटिन्यूसली विद अ हाई फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहते हैं। आपके जितने भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सर्किट्स हैं आज की तारीख में सब AC हो गए हैं, ठीक है। DC करंट मतलब DC जनरेटर से होता है ये। सोर्सेज ऑफ DC करंट इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राई सेल, ठीक है। आप अपना मोबाइल जो चार्ज कर रहे हैं या लैपटॉप का बैटरी जो चार्ज कर रहे हैं वो सारा आपका तमाम DC करंट से होता है। सोलर सेल्स दे ऑपरेट ऑन DC करंट्स, लेड एसिड एक्यूमुलेटर बैटरीज दे ऑल्सो, जितने भी बैटरी रिलेटेड चीज़ें वो सब के सब डायरेक्ट करंट है, ठीक है। आपके बहुत सारे अप्लायंसेस DC करंट पे चलते हैं, ठीक है। उनके लिए आपको चलाने के लिए आपको एक अडेप्टर चाहिए, यू बेसिकली नीड अ अडेप्टर टू रन देम, ठीक है। AC करंट, सोर्सेज ऑफ AC, थर्मल पावर स्टेशंस, कार ऑल्टरनेटर्स, ये सब आपके भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं, ठीक है। ओके, CBSE का एक सवाल उठाते हैं जो आया है 2016 में, व्हाट इज मेंट बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, सिंपल सा आंसर है,
in which the force of magnet can be detected is called a magnetic field. एक मैग्नेट के आजू बाजू का रीजन जहां तक आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को फील कर पाएं उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज बेसिकली सेड टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट इज द रीजन. मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट is a region in which the magnetic force due to the bar magnet could be felt. तो ये भाई साहब बार मैग्नेट के आजू बाजू जहां तक भी हम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर पाएं, ठीक है, ड्यू टू द बार मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. डिफाइन द टर्म इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट मतलब ठूसा हुआ करंट, ठीक है. इंड्यूस्ड करंट, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी से जनरेट होता है इंड्यूस्ड करंट. तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी कॉइल को या किसी कंडक्टिंग वायर को बहुत फोर्स से मूव किया तो उसके अंदर आ जाता है इंड्यूस्ड करंट. दैट इज कॉल्ड करंट जनरेटेड बाय इंडक्शन, ठीक है. सो इट इज अ इलेक्ट्रिक करंट विच ओरिजिनेट्स इन अ कंडक्टर बाय फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ठीक है. आर वी क्लियर? तो कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और या तो मैग्नेट को भाई साहब मूव कर रहे हैं या तो कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, दोनों ही वजह से भाई साहब एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. Why are magnetic field lines more crowded towards the pole of a magnet? तो यहाँ पे पोल ऑफ अ मैग्नेट में ज़्यादा क्राउडेड क्यों हो जाएंगे? Why? बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर मोर क्राउडेड टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ मैग्नेट. तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका भाई साहब हो गया साउथ पोल. दे आर मोर क्राउडेड एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है. दिस इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज स्ट्रॉन्ग. क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं. जैसे जैसे भाई साहब यहाँ पे आएंगे ये वीक होता जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मैग्नेट. क्लियर? ओके ओके ओके, अरे ओके ओके ओके. स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हैं भाई साहब. ओके चलिए, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस R1 और R2 लगाया गया है. एक सर्किट है जिसमें 5 वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है. और ऐसा भाई साहब इस वायर को ऐसे सर्कुलर लूप में हमने डाला हुआ है, ठीक है, तेरे सर्कुलर लूप में डाला हुआ है. अभी यहाँ पे भाई साहब कैसे क्रिएट होगा, देखो इसको अगर मैं इधर से देखूँ, इधर से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इधर से मेरे को क्या मिल जाएगा. देखो इस लूप को देखो ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, करंट तो इसमें ऐसे जा रहा है इस लूप में. यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में हमने आयरन पीसेस को छोड़ रखा है. ये आयरन पीसेस अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है. वाई विल दिस हैपन? बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस विच इज मीन्स वॉट, ये हो गया टेव, ठीक है, और ये हो गया आपका एस, ठीक है. तो साउथ पोल क्रिएट हो गया भाई साहब, ठीक है. इस तरफ मतलब इस तरफ साउथ पोल और उधर से अगर हम देखेंगे तो उस तरफ से हमको भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. क्लॉकवाइज करंट आपका साउथ पोल जनरेट कर रहा है. उधर से अगर हम देखेंगे तो आपका, तो क्योंकि साउथ पोल क्रिएट हुआ है तो मोनोपोल मैग्नेट का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो नॉर्थ पोल डेफिनेटली क्रिएट हुआ रहेगा. तो इस तरफ आपका नॉर्थ पोल और इस तरफ आपका साउथ पोल क्रिएट हुआ है, ठीक है. क्या ओके, सो दीज आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ऑब्जर्व द डायग्राम, 2019 का क्वेश्चन है, and find the correct alternative. The intensity of magnetic field in A is larger than in B, ठीक है. A is larger than in B, ठीक है. आपका भाई साहब यहाँ पे रेजिस्टेंसेस को हमने ऐसे रखा हुआ है और रेजिस्टेंसेस को हमने ऐसे रखा हुआ है. दो ही रेजिस्टेंसेस हैं और रेजिस्टेंसेस सेम है. जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है. यहाँ पे रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. यहाँ पे रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है. अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है तो करंट कम होगा, अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है. अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो करंट बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा. तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लार्जर देन बी. दिस इज बेसिकली व्हाट, अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बी इज लेस देन इन ए. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए एंड बी इज द सेम. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. It would have been the same if the resistances were placed in the same manner. The intensity of magnetic field in A is less than in B. तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. क्या रीजन समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? इज एवरीबडी क्लियर ऑफ द रीजन? नहीं समझ में आ रहा तो बोल लो भाई साहब, ठीक है. यहाँ पे रेजिस्टर्स के प्लेसमेंट के वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है. यहाँ पे भाई साहब कम होगा इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे ज्यादा होगा, और जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी. क्लियर? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है. 2020 का क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज. इट इज करेक्ट.
ये हमारे इंडिया में एसी सप्लाई का, ठीक है, करंट फ्रीक्वेंसी है। इंडिया में आपका 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, एसी सप्लाई जो होता है, आपका घर में जो करंट आ रहा है वो लगभग 50 बार एक सेकंड में पोल्स चेंज कर रहा है। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे भाई साहब आ रहा है। नॉर्थ साउथ नहीं बोलूँगा मैं, एंट्री और एग्जिट का पॉइंट्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर चल रहा है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो इट इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड वी हैव एसी एंड डीसी जनरेटर्स, ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। फाइंड द ऑड वन आउट, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। सो बट ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों चीज़ों को हम किसी ना किसी सर्किट में एम्प्लॉय करते हैं। वोल्ट मीटर को वोल्टेज नापने के लिए, अमीटर को करंट, एंड गैल्वेनोमीटर को करंट का मैग्नीट्यूड नापने के लिए, ठीक है। सो इन तीनों का भाई साहब इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेशनशिप है। थर्मोमीटर इज कनेक्टेड विथ हीट, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या इलेक्ट्रिक करंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अदर वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेल थर्मोमीटर डज नॉट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, गिव साइंटिफिक रीजन in the electrical equipment producing heat, example iron, electric heater, boiler, toaster, etc. and alloy such as nichrome is used, not pure metals। हम प्योर मेटल्स को यूज़ नहीं करते हैं, हम किसी अलॉय को यूज़ करते हैं। अलॉय मतलब जो मेटल से कम हो, ठीक है, मेटल से कम हो मतलब जिसका कंडक्टिविटी तो हो लेकिन साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी हाई हो। अभी जैसे समझ लो किसी हीटर को आप बना रहे हैं, उसको नाइक्रोम वायर से आप बनाते हैं ना कि कॉपर वायर से। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाइक्रोम इज नॉट दैट ग्रेट बट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज़ अ गुड रेजिस्टर। तो रेजिस्टर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। सो द हीटिंग डिवाइसेस सच एज आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, बॉयलर एक्सेट्रा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Alloys such as nichrome as compared to metals have higher resistivity, ठीक है। Unlike metals they can be heated to a higher temperature। तो भाई साहब मेटल्स उतने टेम्परेचर तक जा नहीं पाएंगे, उसके पहले ही पिघल जाएंगे। कॉपर को आप यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ गुड कंडक्टर, और उसको किस में यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज़ वायर बनाने में। थोड़ा सा हीट होता है तो वो मेल्ट हो जाता है भाई साहब, वो कहाँ से किसी गीज़र के कॉम्पोनेंट में यूज़ हो सकता है। तो नाइक्रोम वायर को हम यूज़ करते हैं। नाइक्रोम क्या रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस अगर हाई होता है तो क्या होता है, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो एक बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। हमने देखा भाई साहब हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाई है तो हीट भी आपका ज़्यादा जनरेट होगा और इसी को हम यूज़ कर सकते हैं, और ये मेल्ट नहीं होगा। नाइक्रोम एक ऐसा मेटल है जो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। कॉपर को हमने यहाँ पे यूज़ किया होता तो कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वो हीट में फटाफट मेल्ट भी हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो जनरली हम अलॉयज को यूज़ करते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अलॉयज हियर इज टू जनरेट मोर हीट, ठीक है। हेंस हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ अलॉयज रादर देन अ प्योर मेटल। क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, हियर वी हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर्स ऑफ द सब क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। Which instrument in the figure is shown? What kind of instrument is this, people? The instrument is an AC generator। AC generator हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन ब्रशेस हैं, ये ऐसे है भाई साहब, स्लिप रिंग्स हैं और इनको टच करता हुआ है। ये अभी देखो इनके पोल्स चेंज होंगे, ये साइड ए बी जो है ऐसे पूरा घूम जाएगा, ठीक है। अभी साइड ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो अभी आपका पॉजिटिव पोल है वो आपका कुछ देर बाद नेगेटिव हो जाएगा। हर रेवोल्यूशन में आपके पोल्स चेंज हो रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अ एसी जनरेटर। समझ में आ रहा है? एसी जनरेटर किसको बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड में आप इस शाफ्ट को घुमा रहे हैं, ठीक है। ये शाफ्ट जब घूम रहा है तो क्या होगा भाई साहब, ये कार्बन ब्रशेस है, स्लिप रिंग्स हैं, ये इधर से इधर घूम रहे हैं भाई साहब। तो ये जैसे ही घूमेगा ऐसे आ गया भाई साहब, अभी ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया। यहाँ पे ए बी करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जब ए बी इधर आ जाएगा तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन देखो चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसी तरह से आपका भाई साहब करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एसी करंट। अभी इसको देखो,
बहुत जो नींद आ रही मारूंगा एक। देखो यहाँ पे कैसा होता है, दिस इज द फोर्स, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो इस वायर को देखो, ठीक है, ये वाला जो वायर है इसमें अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ है भाई साहब, इधर से इधर है, ठीक है, और फोर्स आपका कैसे जा रहा है भाई साहब, ऊपर की तरफ है, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, देख रहा है भाई साहब, ऐसे जा रहा है करंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपका फोर्स भाई साहब ऊपर की तरफ है, आप इसको ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं ना, ये ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो करंट किधर जाएगा, इधर, मतलब ये सामने की तरफ जा रहा है, तो सिमिलरली करंट इधर जनरेट होगा, ठीक है। अभी जैसे ही भाई साहब ये इधर घूम गया, ठीक है, ए भी जैसे इधर आ गया, तो करंट इसमें इधर की तरफ जाएगा, और इधर भाई साहब इधर की तरफ जाएगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट है जिसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जिस फेजेस पे ये आ रहा है उस पे चेंज होते जा रहे हैं, तो ए बी में कभी इस तरफ जा रहा है और उसी ए बी में कभी इस तरफ आ रहा है, ठीक है, सी डी में कभी इस तरफ जा रहा है तो कभी इस तरफ आ रहा है, तो आपका भाई साहब पोलैरिटी चेंज होती जा रही है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। सो दिस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर इज एन एसी जनरेटर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड यू रूल इज, अभी देखो यहाँ पे अगर हमको डिटरमिन करना है, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा लो, इजी है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये कैसे जा रहा है भाई साहब, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इट इज बेसिकली गोइंग लाइक दिस, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका भाई साहब इट इज फोर्स which is acting downwards, so the direction of current will be towards you, आपकी तरफ करंट आ रही है, लेकिन हर बार ये चेंज होता जाएगा, ठीक है, एवरी रेवोल्यूशन विल चेंज इट, ठीक है, एवरी रेवोल्यूशन में ये चेंज होता जाएगा, इसीलिए इसको हम एसी जनरेटर बोल रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है ये, ठीक है, ओके। स्ट्रेच द थंब, ये तो आपका भाई साहब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपने कर दिया। कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एज शोन इन द फिगर डायग्राम, करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू बी1 इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो आपका भाई साहब B2 से B1 यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में भाई साहब फ्लो हो रहा है, ठीक है, टू इंक्रीज द करंट नंबर ऑफ टर्न्स इन द, तो आपका भाई साहब इन विच डायरेक्शन, आपका B1 से देखो ये गया B2 तक, ठीक है, B1 टू B2 और B2 टू B1, B2 टू B1 विल द करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट, ये एक्सटर्नल सर्किट है, इंटरनल सर्किट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक्सटर्नल सर्किट मतलब ये पूरा पोर्शन, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, B2 से लेकर B1 तक, दैट्स हाउ द करंट विल फ्लो, ठीक है, क्लियर है। ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट का डायरेक्शन डिटरमिन करेगा, सो इन विच डायरेक्शन विल द करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट, इट विल फ्लो फ्रॉम B2 टू B1, ठीक है। स्टेट द रूल, तो आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, तो आपको बोलना पड़ेगा द first three fingers are placed perpendicular to each other, ठीक है, the direction of the forefinger is going to be the direction of the magnetic field, that is from north to south, the thumb is going to be the direction of force acting on the conductor, and the middle finger is basically going to be the direction of current induced inside the conductor, that's how it's going to basically work. Are we clear to this one people? Process clear hai? Are we clear on this process? So what change will have to be made in the coil for increasing the current several times without changing the magnet? आपको भाई साहब मैग्नेट नहीं चेंज करना है, मैग्नेट मतलब ये वाला, ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया है, तो बाकी किस तरीके से आप करंट को बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन यू बेसिकली इंक्रीज द करंट, तो आप जितना नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, मतलब देखो यहाँ पे एक गया, उसके बाद एक और गया, इसके बाद एक और गया, तो आप जितना नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, if you increase the number of turns you are basically going to increase the current, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका, to increase the current number of turns of the coil should be increased। मैग्नेटिक फील्ड को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, वो पहला ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको दिया जाए कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, अब बताओ कैसे करंट बढ़ाओगे, सो द ओनली ऑप्शन इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बढ़ाओगे बताओ, कॉइल के नंबर, एक ही कॉइल जा रहा ना भाई साहब, कैसे बढ़ाओगे, तो एक्सेल जो है आपका, ये एक्सेल मोटा सा ले लो और इसमें एक, ठीक है, एक और दो ऐसे तीन ऐसे कॉइल के टर्न्स बढ़ा दो इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड लाइक द लेबल्स ए एंड बी, ये हो गया मोशन ऑफ कंडक्टर, दिस विल बी व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, and B will be induced current, ठीक है, induced current, so this will be obviously the direction of magnetic field, this will be the direction of magnetic field and this will be the direction of induced current। Are we clear to this one people? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टन 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 टन। ओके, ये तो हो गया था भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, हो गया था,
सप्लीमेंट खत्म कर दिया? किस लिए बुला रहा है? सप्लीमेंट खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, दोनों के लिए सप्लीमेंट खत्म हो गया। ओके, क्या सोहम, तेरे पे बहुत उम्मीदें थी, सारा खत्म कर डाला तूने यार। भाई साहब मुझे ना हर एक क्लास में से एक मॉनिटर। ओके, व्हाई डज अ नीडल, आप रिपोर्टिंग कर दीजिएगा सीधा, पहले बोलिएगा, नहीं मानेंगे सीधा सर ये लोग हैं। नेक्स्ट दिन हम यहाँ पे 2 घंटा उनको बैठाएंगे, एक वर्कशीट देंगे मस्त का, वो करके जाना पड़ेगा, ठीक है? कोई कमी नहीं है मेरे पास पेपर्स की, वर्कशीट की। देखो भाई साहब, क्योंकि तुम लोग इतने निर्लज हो कि तुमको हम गाली दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमको मारें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ पे तुमको फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा टाइम। मतलब 2 घंटा हमको रील्स देखने को नहीं मिलेगा या कोई फालतू स्नैपचैट में टाइम बिताने को नहीं मिलेगा तो हमारी जान पे आ जाएगी, है ना? ये इस पे हम तुमको दबोच लेंगे, ठीक है? ओके, व्हाई डज कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन बॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास नीडल लाओगे तो क्लैश होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। भाई साहब कंपास नीडल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपस में भाई साहब ये क्लैश करेंगे, जिसके वजह से कंपास नीडल भाई साहब वाइट करेगा, ठीक है? ओके, सो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is kept in a magnetic field, state the position when maximum force acts on it. The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is maximum when conductor is kept perpendicular, ठीक है? जब भी आप कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं, मुझे बता सकता है कोई क्यों ऐसा होगा? किसी कंडक्टर को अगर आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, देखो अभी तुम ये वाला बात कर रहे थे ना, ये देखो ये कहाँ गया भाई साहब हमारा मोटर 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 रे मोटर, ये आ गया मोटर, ठीक है? ओके, अभी देखो जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, अभी यहाँ पे देखो जितना मैग्नेटिक फील्ड को ये डिस्टर्ब करेगा, जितनी बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा, ठीक है? अभी यहाँ पे जब ऐसा है, देखो ये, ठीक है, ये ऐसे है भाई साहब, ये शार्प, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड, जब ये ऐसे हो गया तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को ये डिस्टर्ब कर रहा है ना? ये दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। जब ये ऐसे हो गया परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, सो टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिस्टर्बिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डिस्टर्बेंस के चलते मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? ठीक है? सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल बी जनरेटेड व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ गए भाई साहब, ये कहाँ चला गया रे? अरे तो कहाँ गया रे? The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is maximum when the conductor is kept perpendicular to the direction of magnetic field. Name the physical quantities which are indicated by the direction of thumb or forefinger in the Fleming's right hand rule. बता सकते हैं भाई साहब क्या क्या है? ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में वही है, देखो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं करने के लिए भी नहीं है। एक लेफ्ट हैंड रूल में आपको फोर्स पता चलता है और राइट हैंड रूल में आपको करंट का डायरेक्शन पता चलता है दोनों एक ही, ठीक है? आप जब 11 में जाएंगे तो इसमें आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मतलब आपके साइंस में इस 11 में 12 बोलूँगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल आर एक्चुअली द सेम, इज जस्ट दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अच्छा जब हमको फोर्स चाहिए उसका डायरेक्शन क्या है और जब हमको करंट का डायरेक्शन चाहिए तो क्या है, इसीलिए हमने दोनों को अलग किया हुआ है। स्टेपलर, रोक स्टेपलर, अच्छा हाँ टाइम हो गया रे, ले। Okay, the magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. तो ये आपका magnetic field का direction हो जाएगा. This is a uniform magnetic field inside a solenoid. State the observation made by Ørsted on the basis of his experiment with current carrying conductors. ठीक है? Every current carrying conductor has a magnetic field around it. तो किसी भी current carrying conductor के आजू बाजू हमेशा और हमेशा एक magnetic field होगा, ठीक है? Okay, okay, okay. State the effect of the strength of the magnetic field produced at a point near a straight conductor if the electric current flowing through it increases. अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा भाई साहब, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, ठीक है? 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा, ये तमाम चीजें हैं जिन पे ये डिपेंड करेगा। स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या है भाई साहब?
आपका इलेक्ट्रिक करंट ही तो है, ठीक है। इट कैन डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि भाई साहब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और तो इस पे एक फोर्स लगेगा। देखो जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है, वैसे ही मूविंग चार्ज पार्टिकल बेसिकली क्या है, करंट ही तो है, ठीक है। दैट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो इसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा, ये पथ भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इट कैन डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट, अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड इट। तो कोई भी अगर मैग्नेटिक नीडल को आपने करंट कैरिंग वायर के पास रखा है तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ये क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू। एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बिकॉज ऑफ विच इट विल डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक कंडक्टर, ठीक है। तुम लोग का है ना, अभी है ना वैसा, okay, mention the angle between a current carrying conductor and magnetic field for which the force experienced by this current carrying conductor placed in the magnetic field is the largest। क्या हो जाएगा भाई साहब आपका परपेंडिकुलर है ना, so this will be largest for angle will be how much of people are 90 degrees, clear people, ठीक है। the angle between the list two sources of magnetic field। magnet आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मूविंग चार्जेस अगर चार्जेस भाई साहब मूव कर रही हो तो भी भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द लिस्ट सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सजेस्ट वन वे ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अ वायर कैरिंग करंट फ्रॉम अ वायर कैरिंग नो करंट। तो एक वायर जिसमें करंट जा रहा है और एक वायर जिसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर कोई वायर है जिसमें करंट जा रहा है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा भाई साहब, और अगर कोई वायर है जिसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। प्रसाद उसका चार्जर का बंद कर देना स्विच, थैंक यू, ठीक है, क्लियर है। ओके। ब्रिंग अ मैग्नेटिक नीडल नियर द वायर, अ करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन। तो ज़्यादा करके हम समझ लो जो कंसील्ड वायरिंग्स होती है ना, मतलब जो ये तो आपका भाई साहब बाहर से वायरिंग दिख रहा है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर या फ्लैट के अंदर जो कंसील्ड वायरिंग्स होती हैं, अंदर ही अंदर जो वायरिंग गई है, अभी अगर वायरिंग में कोई डिफॉल्ट आया है तो इसको अपन मैग्नेट से टेस्टिंग करते हैं। तो अगर किसी मैग्नेट को आप बाहर से लेकर जा रहे हैं और भाई साहब उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये ब्रिंग अ मैग्नेटिक नीडल नियर द वायर, अ करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल, वेयरएज अ वायर विदाउट अ करंट विल नॉट। तो वायर जिसका कोई करंट नहीं तो इट विल नॉट प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन, ठीक है। Okay, a straight wire carrying electric current is moving out of plane of paper and is perpendicular to it. What is the direction and type of the induced magnetic field? Induced magnetic field will be in the form of concentric circles in the plane of paper. ठीक है, तो induced magnetic field जो होगा, ठीक है, it will be basically in the form of concentric circles. In the form of concentric circles. अगर कोई भाई साहब ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आजू बाजू किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंज इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल इज हाफ्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखो क्या किया गया, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस पहले क्या था आर, अभी आपने क्या कर दिया, इसका रेडियस हाफ कर दिया है ना, कॉइल इज हाफ, ये कर दिया है आपने। और करंट को क्या बढ़ा दिया भाई साहब आपने, करंट को, ठीक है, द करंट इज बेसिकली डबल्ड। करंट को आपने पहले करंट था क्या आई, अभी आपने करंट को क्या कर दिया है 2i, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये हमने देखा भाई साहब, ठीक है। तो अगर अपन करते हैं, अभी कोई कांस्टेंट होगा, देखो b को अपन अगर लिखते हैं तो k लिख देते हैं कांस्टेंट i/r, है कि नहीं। तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ki/r, है कि नहीं, b1 की वैल्यू i1/r1। अभी i2 जो है वो क्या है, 2i1 है, और r2 जो वो क्या है, हाफ r1 है कि नहीं, r1 है। तो अपन b2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे b2 की वैल्यू लिख सकते हैं ki2/r2 एंड दैट कैन बी रिटन एज b2 is equal to ki2, that is 2i1
upon R2 that is half R1, so that will be how much, K 4I1 by R1, ये हो गया आपका B2, ठीक है। तो B1 by B2 कितना हो जाएगा बोलो, B1 by B2 इज इक्वल टू K, B1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, K I1 by R1, और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4K I1 by R1, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/4, तो B1 by B2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपका हो जाएगा भाई, हाँ, तो आपका B2 इधर अपन कर सकते हैं 4 इंटू B1 इज इक्वल टू B2, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बिकम 4 टाइम्स, क्लियर है। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का 4 टाइम्स हो जाएगा, जो अभी का मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे क्या होगा अरे द, चलो वापस जाते हैं भाई साहब, कुछ स्टेट बोर्ड के सवाल उठाते हैं, PYQ तो हो गया भाई साहब, ओके। और रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका भी भाई साहब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस। द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में आपका एक लाइव वायर होता है, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स, ठीक है। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। तो आपका जो प्लग होता है, ये जो दो होते हैं, ये लाइव है और एक न्यूट्रल है, और ऊपर वाला जो है वो अर्थ का वायर है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑफ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स गिव्स अ वे टू द टू वायर्स कमिंग कॉन्टैक्ट। तो लाइव और न्यूट्रल वायर अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए, लेट्स से आपका जो प्लास्टिक है वो उखड़ गया रहेगा या कुछ भी हुआ रहेगा, तो अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, इफ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद each other and a large current flows through it producing heat, ठीक है। In any inflammable material such as wood, cloth, plastic, there exists around the place, it can catch fire। तो भाई साहब फायर कैच हो सकता है, ठीक है, इट कैन एक्चुअली कॉज फायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सिर्फ इसके वजह से नहीं होता है। देखो अभी ऑब्वियसली बात है भाई साहब, समझ लो ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। अभी ये भाई साहब प्लास्टिक कोटिंग है, ये भी प्लास्टिक कोटिंग है, इनके प्लास्टिक कोटिंग में कुछ प्रॉब्लम आया और भाई साहब शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया ये तो एक बात होगी। और वहाँ पे जो प्लास्टिक रहेगा इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जल जाएगा वो, ये तो एक बात हो गई। कभी कभी क्या होता है ना, जो आपका प्लग है, देखो ये 3 पॉइंट है ना इसके, 1 2 3 ऐसा है, प्लग को आपने ऐसे इंसर्ट किया है, अगर समझ लो आपने गैप छोड़ा है थोड़ा सा, तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब आपका जो एयर है ना, समझ लो ये आपका प्लग है, ठीक है, ये भाई साहब आपका प्लग है, ये एक हो गया, एक लाइव एक न्यूट्रल। अभी अगर समझ लो भाई साहब ये दीवार से इतना गैप में आपने छोड़ा है प्लग को, इसलिए प्लग को हर समय ठूंस के रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये जो एयर है, ये एयर चार्ज हो जाता है, इतना ज़्यादा चार्ज का ट्रैफिक है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एयर जो है इंसुलेटर है, लेकिन कंटिन्यूस ये एक्सपोज्ड है टू दिस हाई फ्लो ऑफ चार्ज एंड इट गेट्स चार्ज्ड, तो ये चार्ज हो जाएगा। और जैसे ये चार्ज होगा, ठीक है, अभी देखो ये न्यूट्रल है, ये आपका भाई साहब न्यूट्रल प्लग है और ये लाइव है, ठीक है। कोई बहुत हाई आउटपुट है जैसे AC है, गीजर है, ऐसा कुछ है, तो ये दोनों से भाई साहब जा रहा है और आपने गैप छोड़ा हुआ है, मतलब जो आपका स्विच बोर्ड है और आपका जो प्लग है उसमें गैप छोड़ा हुआ है। अभी क्या होगा, एयर चार्ज हो जाएगा, ये आपका भाई साहब पॉजिटिव के हिसाब से, ये आपके नेगेटिव के हिसाब से। ये चार्ज क्या करेगा, ये एयर अभी बेसिकली इंटैक्ट करेगा और एयर फट जाएगा, ठीक है। एयर भाई साहब वहाँ पे फटेगा और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप कभी कभी बोलोगे भाई साहब लाइव और न्यूट्रल वायर तो साथ साथ आए नहीं, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एयर, ठीक है। इसीलिए प्लग को कभी भी ठूंस के लगाना रहता है, उसमें अगर आप एयर गैप छोड़ेंगे तो इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो भाई साहब आपका एयर जो है, तो अभी देखो ना ये बिजली क्यों कड़कती है, बिजली इसलिए तो कड़कती है क्योंकि भाई साहब आपका जो चार्जेस हैं, तो एयर जो है वो दो क्लाउड्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एयर है उसके बीच में, उसके ऊपर भाई साहब चार्जेस का भाई साहब ऐसा हो रहा है, तो वो फट जाता है, ठीक है। एयर का एनर्जी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आयनाइजेशन ऑफ एयर हो जाता है कि वो फट जाता है, ठीक है, और तभी आपका क्लाउड बर्स्ट होता है, ठीक है। ओके, सो नेम द 2 वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220, द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। अर्थ के वायर में कोई पोटेंशियल नहीं होता है, अर्थ का वायर सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो ड्रेन आउट कर देता है अर्थ में,
because earth is supposedly a conductor which can pull electrons towards it or charges towards it. ठीक है? So due to a fault in the equipment or if the plastic coating of the live and the neutral wires gives way, the two wires come in contact with each other and a large current flows through it producing heat. This is known as शॉर्ट सर्किटिंग. ठीक है? तो वहाँ पे भाई साहब आग पकड़ सकती है. हालांकि आज की तारीख में एमसीबी के लिए ये एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता है. ठीक है? एमसीबी भाई साहब मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट होगा वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, वो उधर का सर्किट अपने आप पूरा ऑफ हो जाएगा. ठीक है? फ्यूज वायर्स प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट. तो आपके घर में जो एंट्री पॉइंट होती है करंट की वो होती है फ्यूज्ड वायर्स. और ये फ्यूज वायर्स जो होते हैं इतना रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इनके रेजिस्टेंस के हाई होने के चक्कर में क्या होता है कि भाई साहब ये शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं. ठीक है? दे विल बेसिकली अंडरगो शॉर्ट सर्किट. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब डिफरेंसेस देखते हैं हम. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें. ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है? सो ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज इन द मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली. तो आपका भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो वेरी करता है इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली, दैट इज ऑसिलेटरी होता है. ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट फ्रॉम अ सोर्स रिमेन्स द सेम, दैट इज नॉन ऑसिलेटरी. ठीक है? ये नॉन ऑसिलेटरी होता है. डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, दैट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा कंटिन्यूसली होता रहेगा. ठीक है? डायरेक्शन रिमेन्स सेम. डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है. ठीक है? ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है. दिस टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड. ठीक है? ये जो करंट होता है, दिस टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा. आपका जितना भी डोमेस्टिक और पेपर हो गया, बट 3 घंटे का पेपर है. नहीं, कितने बजे आया तू? 4:30 बजे ना. तो 3 घंटे का पेपर है ना, 7:30 तक. आधा घंटा किधर बाकी है? पौने घंटा बाकी है अभी. ओके. दिस टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ करंट इज नॉट यूज फॉर मच हाउस होल्ड पर्पज बट यूज इन बैटरीज. डीसी करंट आपका ज़्यादा करके बैटरीज, एडाप्टर्स इसमें यूज होता है. ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इंडिया में भाई साहब 50 हर्ट्ज का है. ठीक है? तो आपके भाई साहब ये 50 हर्ट्ज का है. फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0. ठीक है? आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हैं, देखो सब उसमें ना लिख के दे कितने मार्क्स मिलेंगे. पौने घंटे पहले तुम लोग पेपर सबमिट कर रहे हो. अच्छा जी, हीरो सब. जब भी कोई देखो हम बोलते हैं ना असेंबल्ड पीसेस. ठीक है? ये यहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ा गेम चल रहा है एक्चुअली. ठीक है? मैं बता देता हूँ आपको. समझ लो कोई कंप्यूटर है या कोई आपने लैपटॉप लिया है या कोई भी सिस्टम आपने बाहर से ख़रीदा है, बाहर से. तो हर एक कंट्री के अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट्स की फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन होती है. ठीक है? जैसे हमारे इंडिया में वैसा 50 हर्ट्ज़ का चल रहा है, तो किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है 52 हो, किसी दूसरे कंट्री में वैसा 48 हो, ऐसा होता है. ठीक है? तो जो सर्किट्स होते हैं उनके जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं दे आर डिफरेंट. ये फ्रीक्वेंसीज़ आपकी डिफरेंट होती है. तो जब आप किसी बाहर के इक्विपमेंट को या गैजेट को इंडिया में लाते हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी को आप अपग्रेड कराते हैं. ठीक है? तो इंडिया में इसी अपग्रेडेशन को हमने भाई साहब नाम दे दिया है असेंबलिंग. ठीक है? और इसी असेंबलिंग के चलते भाई साहब आप बहुत बड़ा जीएसटी का एक चंक बचा लेते हैं. ठीक है? आप बोलेंगे कि ये प्योर फॉरेन प्रोडक्ट नहीं है. ठीक है? इट इज़ एन असेंबल्ड पीस. ठीक है? जैसे आपके पीसीस जो होते हैं वो ज़्यादा करके असेंबल्ड पीसेस होते हैं. जो आपके पर्सनल लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीसीस होते हैं वहाँ पे आपने भाई साहब इंटेल का लगाया होगा सिस्टम, कोर लगाया होगा, किसी दूसरे डेल का भाई साहब मॉनिटर खरीदा होगा, किसी दूसरे कंट्री का मदरबोर्ड खरीदा होगा. तो ऐसा आपका असेंबल्ड पीस होता है. लेकिन एक्चुअली जैसे ये सिस्टम है, देखो. ठीक है? ये सिस्टम चाइना का है, लेकिन इसमें जीएसटी बचाने के लिए जब हमको बेचा गया ये, तो उसमें इसको असेंबल्ड पीस दिखाया गया, क्योंकि इट हैज़ टू बी कैलिब्रेटेड एज पर द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब ये 50 हर्ट्ज के एसी को संभाल सके. सिर्फ अपग्रेडेशन करना है, एक माइनर सा अपग्रेडेशन करना पड़ता है, जिसमें हम उसको असेंबली का दिखाकर उसमें बहुत बड़ी भारी मात्रा में जीएसटी को बचा देते हैं. ठीक है? ये चल रहा है वैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रोडक्ट में. प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर. ठीक है? तो एसी जनरेटर भाई साहब ये आपका जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है. एसी जनरेटर क्या होता है? जो ऐसे घूम रहा है कि भाई साहब ये इधर आ गया अभी और ये इधर आ गया, तो उसका डायरेक्शन जो ऑफ करंट जो है तो रिवर्स होता जा रहा है.
So in a generator wherein the direction of current reverses continuously, it's known as an AC generator. डायरेक्ट करंट किससे प्रोड्यूस होता है भाई साहब? डीसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है. आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, ऑब्जर्व द डायग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द अबव फिगर. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द अबव फिगर. तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है भाई साहब? मैग्नेटिक इफेक्ट. यहाँ पे आपका भाई साहब करंट जा रहा है और ये मैग्नेटिक नीडल पे इफेक्ट आ रहा है. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द गिवन फिगर. इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज इंक्रीज ऑन द मैग्नेटिक नीडल, अगर हमने भाई साहब मैग्नेटिक नीडल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स को बढ़ा दिया, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज इंक्रीज ऑन द मैग्नेटिक नीडल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि अगर सेल्स को आप बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा. करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, तो डिफ्लेक्शन भी मैग्नेटिक नीडल का बढ़ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक नीडल इज इंक्रीज्ड, इसको आप अगर दूर लेकर जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बिकॉज मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. तो अगर आप कंडक्टर से डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाता है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक नीडल is increased, what will be the effect of the intensity of the magnetic field? ठीक है, if the current flowing from AB south, if the distance is increased, the intensity will decrease. ठीक है. चौथा क्वेश्चन क्या है? if the ends of the electric cell are interchanged, अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? उल्टे तरफ का डिफ्लेक्शन होगा. अगर अभी ऐसा हो रहा था तो अभी इस तरफ होगा. समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर आपने सेल के, देखो ऐसा सेल लगाया हुआ था, अभी आपने इसको सेल को ऐसे लगा दिया, करंट उतना ही जा रहा है ना, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होगा वो उल्टा हो जाएगा. तो अगर नॉर्थ साउथ पोल उल्टा हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज द एंगल बाय विच द मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड विल बी द सेम. ठीक है, ओके. राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अमीटर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक बेल, गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, all of these basically work on the magnetic effect of electric current. ठीक है, clear people, clear. Okay, observe the given figure, Fleming's left hand rule and write the labels of A and B. Direction of magnetic field, direction of current. भाई साहब ये हो गया क्या? Direction of current, this will be direction. ये direction of current हो गया, magnetic field हो गया, और ये तो obviously force हो गया. ठीक है, so direction of current. ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस. 2022 का क्वेश्चन है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है भाई साहब बीच में. ठीक है, व्हेन द एक्सेल इज रोटेटेड, ठीक है, with the sorry, identify the above diagram. So this is what basically people, what is this? An AC generator है भाई साहब. The instrument shown is an AC generator. Write the principle on which it works. So it works on the principle of electromagnetic induction. सिंपल भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जब इसको आप घुमाएंगे तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. On rotating the axle, the branch AB moves upwards, the branch CD moves downwards, and the clock ABCD rotates clockwise. According to Fleming's right hand rule, electric current flows in the direction ABCD. और जैसे इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? Therefore current flows from B2 to B1. ठीक है, ये तो पहला हो गया. After half rotation, the branch AB and CD exchange their position. तो अभी भाई साहब कैसे जा रहा है? DCBA ऐसे जा रहा है करंट. ठीक है, क्योंकि आपका AB इधर आ गया और CD इधर आ गया. ठीक है, तो DC ये ऐसा हो गया ना, इधर D आ गया, DCBA ऐसे जाएगा करंट. ठीक है, सो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया. पहले क्या था? ABCD था, अभी शाफ्ट में कैसे जा रहा है? DCAB. ठीक है, सिंस ब्रांच BA इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्रश B1 and DC is contact in brush T2, the current flow from B1 to B2 in the external circuit in the direction opposite to the previous half rotation. तो पहले आपका कैसा गया था? B2 से B1 गया था, अभी कैसा जाएगा? B1 to B2 जाएगा. ठीक है, क्लियर है? सो दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन. तो हर एक हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. ठीक है, this repeats after every half rotation and in this way alternating current is produced in AC generator.
यूजेस पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक कॉफी मशीन एक्सेट्रा, इन सब में भाई साहब इसका यूजेस है। ओके ओके ओके, एक ही न्यूमेरिकल आया है इस चैप्टर पे फ्रॉम स्टेट बोर्ड, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है, देखो 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ पावर 50 वॉट एंड 60 वॉट वर्क ऑन 220 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग इन द मेन कंडक्टर। तो आपका देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 220, ठीक है। पावर ऑफ बल्ब 1 इज 50 वॉट, पावर ऑफ बल्ब 2 इज 60 वॉट। टोटल करंट कितना हो जाएगा, अभी देखो फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, और जो टोटल करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉर्मूला अगर आप देखोगे भाई साहब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 बाई V, P1 कितना है 50 और V कितना है 220, I2 कितना हो जाएगा P2 बाई V दैट इज 60 बाई 220, ठीक है। तो टोटल करंट कितना जा रहा होगा, इसका प्लस इसका, है ना। सो इतना करंट टोटल जा रहा होगा दैट इज 110 बाई मतलब 0.5 एम्पियर। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द मेन कंडक्टर आपका 0.5 एम्पियर होगा, ठीक है। क्लियर है। देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे बल्ब्स कनेक्टेड हैं या वो जो भी लाइट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो आपका अलग अलग पावर के अगर होंगे तो टोटल करंट जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसमें से कितना जाएगा, ये क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर है। ओके ओके ओके, हो गया। ठीक है भाई साहब, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर